Hello students, welcome back in the third part discussions. Earlier we had discussed about what is elements. From the same chapter, is matter around us pure? So today we have from the same chapter another discussions related with elements, and so we have classifications of elements. Today we will discuss on this topic. So let's get started. Elements elements are divided into three groups: metals, non-metals, metalloids. Metals, non-metals and metalloids are the three groups that are divided of elements. Why the three groups? In a three groups that are elements are divided. एलिमेंट्स तीन ग्रुप में क्यों बांटा गया है? इसलिए बांटा गया बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज. उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज. उनके प्रॉपर्टीज के कारण, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट्स को तीन ग्रुप में बांटा गया है. तो बिकॉज metals, non-metals and metalloids, these are the three groups of elements which are divided. तो ये थ्री ग्रुप्स जो बटे हुए हैं एलिमेंट्स के, इनके प्रॉपर्टी के आधार पर ये बटे हैं. तो बिकॉज these three elements groups actually they have distinct properties. अलग अलग प्रकार के प्रॉपर्टीज हैं इनके. इसको हम लोग इन अनदर वर्ड्स वी कैन से दैट इनके गुण अलग अलग प्रकार के. सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ग्रुप दैट इज मेटल्स. क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स. तो मेटल्स के बारे में टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ पार्ट ऑफ एलिमेंट्स. तो मेटल्स के बारे में हम लोग टुडे वी विल डिस्कस. सो लेट मी क्लियर यू व्हाट इज मेटल्स. मेटल्स इज एन एलिमेंट्स. मेटल एक एलिमेंट्स है. इट इज ऑलरेडी क्लियर दैट फ्रॉम द अबव टॉपिक दैट एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स. सो मेटल्स is the part of elements. That's why here in the statement is mentioned about the elements. It is an elements. That means metals is an element that is malleable, ductile and conduct electricity. So malleable, ductile, conduct electricity, these are the three main properties. These are the three main properties of metals. यही है मेटल्स के तीन मेन प्रॉपर्टीज. और यही थ्री मेन प्रॉपर्टीज के कारण, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज दैट द मेटल्स आर टोटली सेपरेटेड फ्रॉम दीज टू ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स. इसीलिए नॉन मेटल्स और मेटोलाइट से इट इज टोटली सेपरेटेड फ्रॉम दीज टू थिंग्स. ये दो चीजों से अलग है मेटल्स, तो इसीलिए ये सेपरेट है. तो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ मेलेबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सेकंड पॉइंट, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट वन मेटल्स, मर्करी, विच इज अ लिक्विड. दैट मीन्स all the metals are solid. It means that it is clear whatever the metals are exist on the earth, बेसिकली दे आर इन सॉलिड फॉर्म. ज्यादातर वे सॉलिड फॉर्म में ही है. एक्सेप्ट मेटल्स, एक्सेप्ट देयर इज वन ओनली इन लिक्विड स्टेट, दैट इज मरकरी. तो इससे हम लोग को ये मालूम चला कि मेटल्स जो है दैट नेवर एग्जिस्ट इन गैसेस फॉर्म. मेटल्स कभी भी गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है. ये एक क्लियर हो गया. Second one, only one metals are in liquid form, and there is, beside that there is no other metals are in liquid form.
So second point is also cleared. Now third, some of example of metals are, कुछ metals के examples I have written here, iron, copper, zinc, etc. See, these are the example of metals. So iron, copper, zinc, they all are exist in solid form. And as well as why it is called elements? In above discussions, like I said in earlier discussions also, metals are made up of one kind of atoms. So that's why iron, copper and zinc are the elements. Now we have discussed this and that part. Now just let us know about the properties of metals. Let us discuss one by one about the malleable, ductile, conduct electricity, about the properties of metals. So let's get started from the first topic wise we will discuss. Metals are malleable. So let me clear you what does it means about the malleable. Malleable का मतलब क्या है? Let me clear you. Malleable means that which can be converted into thin sheet by beating with hammer. यानी कि किसी भी hammer से अगर हम लोग किसी भी metals को कस के अगर पीटते हैं तो वो कभी टूटता नहीं है. वो it is नॉन ब्रेकेबल, वो टूटता नहीं है, लेकिन वो चैप्टा आकर लंबा हो सकता है, फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, लेकिन वो टूटता नहीं है, बीच बीच से वो टूटेगा नहीं. तो दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ metals. So we can say that it is metals are malleable. Therefore I have written here that metals are malleable as it can be converted into thin sheet by beating without breaking. That's why malleable. तो metals को हम लोग thin sheet, पतले sheet में उसको convert कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, beating के द्वारा, पीट कर, without breaking. पीट कर वो टूटता नहीं, बिना टूटे फूटे. तो that's why it is malleable. So just have a look. Few example I have written here that are like gold, silver, aluminium, foil, etc. गोल्ड हम लोग देखते हैं सोने को पीट कर एक डिफरेंट टाइप ऑफ शेप में उसको ढाला जाता है, प्योर बनाया जाता है, डिफरेंट लुक्स दिया जाता है, टूटता नहीं है. लाइक ज्वेलरी गोल्ड के होते हैं, सिल्वर के हो गए, सिल्वर चांदी, एल्यूमिनियम फॉयल. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स विच आर malleable, जो कि malleable है. सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स यूजेस. अब malleable वाले जो मेटल्स है इसके यूजेस क्या है, इसको हम लोग डिफरेंट पर्पज में भी यूज करते हैं. जैसे एल्यूमिनियम फॉयल हो गया, इन डे टू डे लाइफ just basically we are used aluminium foil for the long journey, especially during the winter seasons. किसी भी खाने को गर्म करने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम फॉयल में लपेट के रखते हैं, चाहे वो चपाती हो गया, कुछ भी हो गया, फूड को स्टोर करके लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रखता है. That's why we can say that aluminum foil is used for packaging, that means packing food items as well as medicines etc. तो हम लोग देखते हैं मेडिसिन टैबलेट्स को भी एल्यूमिनियम फॉयल के अंदर ही उसको स्टोर करके रखा होता है. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स एंड दैट आर malleable. नाउ मूव टू द नेक्स्ट डिस्कशन. मेटल्स आर डक्टाइल. So let me clear you, metals are ductile. What does it means ductile? It means that which can be drawn into thin wire, जिसे हम लोग पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले तार में उसको हम लोग बदल सकते हैं, पीट कर उसको बदल सकते हैं.
तो उसको हम लोग डक्टाइल बोलते हैं, और जिसके कारण से पीट पीट कर वो टूटता नहीं है, फिर भी टूटता नहीं है, दैट इज अनब्रेकेबल, जो कि टूटता नहीं है। तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ डक्टाइल ऑफ मेटल्स। सो which means that can be drawn into thin wires, but all the metals are not equally ductile. तो एक बात here it is clear that all the metals are ductile, but all the metals have not equally ductiles. लेकिन सब लोग ductile हो सकते हो, उसको पीट पीट कर उसको पीट पीट कर पीटा जा सकता है, लेकिन इतना ज्यादा बारीकी पतले तार पर उसको चेंज करने में सभी में इक्वली नहीं किया जा सकता। सभी डक्टाइल हो सकते हैं मेटल, सभी ऑल मेटल्स आर डक्टाइल बट दे आर नॉट इक्वली डक्टाइल, लेकिन इक्वली बराबर रूप में जिस प्रकार से सम अदर मेटल्स आर मोर डक्टाइल एज कंपेयर टू अदर्स मेटल्स, we can say that in that manner also. बहुत से कुछ मेटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि कम डक्टाइल है, बट दे आर डक्टाइल, लेकिन उन लोग डक्टाइल है, हैव द क्वालिटी ऑफ डक्टिलिटी, जिसमें क्वालिटी डक्टिलिटी का। सो हैव अ लुक सम ऑफ द एग्जांपल। गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईली डक्टाइल मेटल्स, whereas copper and aluminum are very ductile that are used in wiring. So if we do compare to the other metals like copper with gold, aluminum with silver, or you can say that both copper and aluminum, if we do comparing with gold and silver, then here more highly ductile are gold and silver. गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा डक्टाइल है, क्यों? बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन वायर, जिसे हम लोग पतले तार में इसको पिरो सकते हैं, बना सकते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, हम लोग जैसे गर्ल्स लोग इयररिंग पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, नॉट गर्ल्स इंक्लूडिंग बॉयज ऑल्सो, तो ये क्या है, एक पतले तार की तरह है। तो दैट्स व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी हाईली डक्टाइल मेटल्स, whereas copper and aluminum are also little less than gold and silver. गोल्ड एंड सिल्वर की तुलना में ये वेरी डक्टाइल है, बहुत डक्टाइल है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डक्टाइल गोल्ड एंड सिल्वर है। सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम, बिकॉज ऑफ हैविंग अ डक्टिलिटी क्वालिटी, सो दैट कैन बी यूज टू मेक, है ना, दैट आर यूज टू मेक इन वायरिंग, जिसे हम लोग वायरिंग के में जिसे बनाया जाता है या बनाया जाता है, वायरिंग के लिए बनाया जाता है। तो दैट्स वाई इन आवर हाउस होल्ड मोस्ट ऑफ द वायर आर मीन्स टोटली वायर्स आर नाउअडेज मेड अप ऑफ कॉपर से ही बना हुआ है। पहले का टाइम में था थोड़ा सा, प्रीवियस टाइम को, बिफोर द 21st सेंचुरी, देयर वर यूज्ड एल्यूमिनियम, मोस्टली द एल्यूमिनियम वायर, लेकिन एल्यूमिनियम वायर उतना सेफ नहीं था, तो बाद में जाकर कॉपर को एकदम ही सेफ और हाईली रेसिस्टेंस ऑफ हीट माना गया, जिसमें कि तुरंत ही इसमें ज़्यादा गर्म होने पर भी ये जलता नहीं है, रेसिस्ट करता है, ज़्यादा जल्दी गर्म होता नहीं है, तार पिघलता नहीं है। तो दैट्स वाई कॉपर आर बेस्ट यूज फॉर वायरिंग। नाउ metals are good conductor of heat and electricity. So here another topic of another properties of metals are good conductor of heat and electricity. Yes,
मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? व्हाई द मेटल्स इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्यों मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? सबसे पहले हियर लेट मी क्लियर यू. एक तो नेचुरली मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से उसमें इस प्रकार का प्रॉपर्टीज है जिसमें कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है और हीट को बर्दाश्त कर सकता है और उसको हीट को बनाए भी रख सकता है. Now, copper and aluminum are good conductor of electricity as well as heating resistance also. अब यहाँ पे आते हैं copper, aluminium are the such metals जो कि क्या है which are good conductor of electricity as well as heating resistance. यानी कि वो गर्माहट को भी बर्दाश्त कर सकता है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को वो अलाउ करता है बहने के लिए. तो इसमें ये एक दो क्वालिटी है. एक तो इलेक्ट्रिसिटी इट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट एंड एज वेल एज इट कैन बियर द हीटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो हीटिंग इफेक्ट उसमें करंट में पैदा होता है उसको बर्दाश्त करने की क्षमता है. नाउ वेयर एज आयरन एंड मर्करी आर लेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आयरन और मरकरी ये भी दो मेटल्स है लेकिन इसमें क्या है लेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस आयरन एंड मरकरी ऑल्सो अलाउ टू इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. क्यों? बिकॉज दे ऑफर ग्रेटर रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट. यानी कि वो करंट के बहने को वो ज्यादा रेसिस्ट करता है यानी कि रोकता है. तो दैट्स व्हाई उसमें करंट बहुत ही कम फ्लो करता है. फ्लो नहीं कंप्लीटली इट डू नॉट स्टॉप बट it allow little to pass through it. Now mercury and lead are the poor conductor of heat. Mercury and lead are poor conductor of heat. Mercury and lead ये दो एक ऐसे metals है are the such type of metals that are poor conductor of heat. जो कि naturally poor conductor of heat. जैसे ही आप लोग देखते हैं मरकरी गर्म होता है तो इंस्टेंटली मरकरी क्या करता है थर्मामीटर में मरकरी राइज अप करता है और रेडिली इट ड्रॉप द टेम्परेचर ऑल्सो और तुरंत ही वो टेम्परेचर को भी लॉस कर देता है यानी कि लूज कर देता है छोड़ देता है जिसके कारण से जल्दी ठंडा भी हो जाता है ड्रॉप डाउन हो जाता है. तो मरकरी से भी ज़्यादा पुअरेस्ट कंडक्टर हम लोग का लीड है. देन सेकेंड इज मरकरी. दैट्स व्हाई मरकरी लीड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड वेयर एज आयरन एंड मरकरी आयरन आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर बिकॉज इट हाईली रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. इसीलिए आयरन को यूज नहीं किया सकता. तो दैट्स व्हाई आई होप दैट यू अंडरस्टूड and see you in the next video of properties of next topic of the properties of metals. Till then, goodbye, take care, thank you.